Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is C. Rajesh Khandelwal and the topic is GSTR 9 and 9C. Complete details and amendments have been discussed. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, and today's we are in the 54th session for skills at the rate 100 where we are trying to bring for you 100 different speakers on 100 different topics. Today's topic is very important right now, and the speaker is very special. Topic we all know, GSTR 9 and 9C. The speaker CA Rajesh Kumar Khandelwal ji is an experienced chartered accountant with nearly 20 years of practice specializing in indirect tax consulting, XBRL compliance. He serves as a faculty member and GST trainer for prestigious organizations including the ICI itself and the EEPC, Indian Ministry of Finance, with a strong educational background including CA, MBA, LLB. He possesses deep expertise in business planning, financial analysis, and statutory audit of corporate and banking industry. So Rajesh sir, thank you so much for accepting our invitation. We are very happy, and obviously sir, आपका fan following, we are already 150 participants. So over to you sir, over to you. Thank you, Lokesh ji. And one my request to Lokesh ji, please take some screenshots of for uploading the Facebook or other social media Yes sir, platform. yes sir, yes sir, definitely. Okay. Today, the topic which is given to me is discussion on GSTR 9 and 9C because this is the month of December 2025 and we already know that last date is approaching because for the financial year 24-25, last date for filing of GSTR 9 9C is 31st December 2025. So this is a good time to discussion about the GSTR 9 and 9C. मेरा जो प्रेजेंटेशन रहने वाला है ये हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा. इफ यू डोंट नो हिंदी then you have to bear the English, and if you don't know English then you have bear with the Hindi. तो आपको दोनों ही चीज bear करनी पड़ेंगी क्योंकि जब मैंने प्रेजेंटेशन का अपना परमिशन दिया था then I have already discussed that I will use mix of the language. So first, in my first part of my presentation I will discuss about the forms, what is the different type of tables in GSTR and GSTR 9C. Thereafter I will discuss what are the important amendments in different tables of form GSTR and 9C with respect to the form 99C with respect to the financial year 24-25. Presently, this is the present position about how I will file my GSTR 9 and 9C. Unsure है, puzzled है, lost है, कुछ नहीं पता. And I want to tell you one thing, what you have learned in previous financial years, since 17-18 to 23-24, you need to unlearn it if you want to accurate file GSTR 9 9C for the financial year 24-25. बिल्कुल भूलना पड़ेगा आपको आपने पिछले सालों में जो भी किया था GSTR 9 और 9C फाइल करने के लिए. Because GSTN CBIC has issued two FAQ how to file data in different tables of GSTR 9 9C for the financial year 24-25. और यदि आपने इन दो FAQ को पढ़े बिना फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9 और 9C फाइल कर दी तो मैं आपको पक्का कहने वाला हूं आपकी GSTR 9 और 9C गलत होने वाली है. So it is my humble request to each participants, kindly read carefully each question and answer to FAQ issued by the GSTN. So it is my humble request, please read both these FAQs. Now I am directly coming to I am not discussing the legal part because we know who is liable to file GSTR 9 and 9C. So I don't want to discuss it. सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, जो GSTR 9 का फॉर्म है इसकी जो डिफरेंट टेबल्स हैं मैं इनको डिस्कस करने वाला हूं. आई हैव समराइज all the tables. I have noted down all the tables in a single slide of my PPT. In GSTR 9, there are 19 tables, table 1 to table 19. So total there is a 19 tables. कुछ टेबल मैंडेटरी हैं, कुछ टेबल ऑप्शनल हैं, कुछ टेबल इंफॉर्मेटिव हैं,
कुछ टेबल में 24-25 के लिए अमेंडमेंट आया है। ऑटो फिल्ड टेबल्स, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 19, जो ये 4 टेबल्स है ना, ऑल दीज 4 टेबल्स आर ऑटो फिल्ड टेबल्स। एज ए रजिस्टर्ड पर्सन need not to report any item in these tables because these tables are auto populated। टेबल 1 में आपका नेम है, टेबल 1 में आपका जीएसटी नंबर है, फाइनेंशियल ईयर है, लीगल नेम है, 1 2 3 के अंदर ये सब कुछ आने वाला है। टेबल नंबर 19 इज रिलेटेड टू लेट फीस। इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन uploading GSTR 9 with delay, then late fees will be applicable and late fees will be calculated automatically by the portal. So registered person need not to report any amount of late fees in table number 19. So these 4 tables are the auto filled tables, table 1, 2, 3 and 19. Now, optional table. Table number 15, table number 16, table number 18. All these are the optional table. ऑप्शनल टेबल का क्या मतलब है? टेबल नंबर 15, 16 और 18 में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना? बिकॉज लॉ मेकर्स हैज प्रोवाइडेड ऑप्शन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। इफ दे वांट टू लेफ्ट ब्लैंकेट देन देयर इज नो इशू। और जहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है, यदि आपके पास में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज माई एडवाइस टू द रजिस्टर्ड पर्सन, प्लीज सिलेक्ट दिस ऑप्शन, ऑप्ट दिस ऑप्शन एंड ब्लैंक दिस टेबल्स। जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करें तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये टेबल खाली हो गई तो कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। एज कंसर्न व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ टेबल नंबर 15, 16, 18? टेबल नंबर 15 इज रिलेटेड टू refund and demand amount. Table number 16 particularly related to information inward supply from the composition dealer, goods sent on approval basis, goods sent on for job work. This meeting is being transcribed by AI companion. Okay, no issue. टेबल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और मैं बहुत खुश हूं कि ये टेबल ऑप्शनल है। दिस टेबल नंबर 18 is related to inward supply by the registered person. This table number 18 capture HSN wise detail of inward supply by the registered person. अब आप कल्पना करिए, रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स बाय करता है। बिकॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दिस केस ही नीड नॉट टू कंप्लाई एनी प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। उसको जब इनवाइस इशू करना है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको एचएसएन कोड अपने इनवाइस पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट एचएसएन कोड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, और मुझे यह कहा जाए कि मैं उसके आइटम का पहले एचएसएन कोड पता लगाऊं, देन आई फिल दिस टेबल नंबर 18 और इसमें क्या डिटेल आनी है? इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आनी है। नाउ बिकॉज दिस इज ऑप्शनल, तो मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किससे परचेज किया है, किससे नहीं परचेज किया। सामने वाले ने एचएसएन कोड लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस टेबल इज ऑप्शनल। नाउ टेबल नंबर 17 इज ए मैंडेटरी टेबल। What are the contents of table number 17? Table number 17 is related to HSN detail of outward supply. It is a mandatory table. और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है, 24-25 में एन अनदर टैब इज प्रोवाइडिंग विच इज इनबिल्ट विद टेबल नंबर 17, because table number 17 captures the detail of HSN wise आउटवर्ड सप्लाई। तो टेबल नंबर 17 के साथ ना एक लिंक दिया गया है, एंड दिस लिंक प्रोवाइड द HSN wise detail which the registered person has uploaded in GSTR1 at the time of uploaded GSTR1. That particular HSN wise detail will be available in Excel when you see the table number 17 of GSTR9. बहुत आसान काम कर दिया है। आपको एचएसएन वाइज आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी है टेबल नंबर 17 में, जीएसटीआर 9 में। कुछ नहीं बनाना आपको एज ए रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड एचएसएन वाइज डिटेल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1।
वो आपकी टेबल नंबर 12 थी GSTR1 की, इन विच यू हैव अपलोडेड दी HSN वाइज डिटेल, और ये आपको कंबाइंडली टेबल नंबर 17 में मिलने वाली है। तो GSTN ने इस बार बहुत आसान काम कर दिया है। HSN वाइज आपको अलग से डिटेल नहीं बनानी, लेकिन आपको चेक करना है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस यू कैन करेक्ट दीज SSN वाइज डिटेल, एंड वी ऑल आर अवेयर दैट इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज less than 5 crore, then registered person need to report 4-digit HSN code in their outward supply invoice। और यदि 5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है रजिस्टर्ड पर्सन की, तो उसको 6 डिजिट का HSN कोड आउटवर्ड सप्लाई को जो इनवॉइस है उस पर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो टेबल नंबर 17 इज मैंडेटरी। टेबल नंबर 8 पे भी बाद में बात करेंगे। On my right hand side, total 10 tables, table number 4, table number 5, table number 6, 7, 9, and table number 10, 11, 12, 13, and 14. All these 10 tables are very much important, and during this financial year 24-25, इस फाइनेंशियल ईयर में इन सभी टेबल्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आया है। इन टेबल्स को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आई विल डिस्कस ऑल दीज टेबल्स विद माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। But before that, I want to discuss what are the data, what are the element content will be reported in all these tables. मैंने क्या किया है, I have divided all these tables into two parts, table number 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन लेता हूं। Data for the financial year 24-25 can be reported in two financial year. Can be reported in two financial year. How? जो 24-25 का डेटा है 24-25 में रिपोर्ट किया जा सकता है, 24-25 का डेटा 25-26 में रिपोर्ट किया जा सकता है। जैसे ही मैंने रिपोर्ट करने की बात की, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ डेटा इन GSTR3B. There may be a possibility that data of 24-25 may be reported in 24-25 of GSTR3B, and 24-25 data may be reported in GSTR3B, which is filing for the financial year 25-26. दो सिचुएशन हो सकती हैं। यदि 24-25 का डेटा 24-25 की 3B में रिपोर्ट कर दिया गया है, then it will be part of table number 4, 5, 6, 7. If data of the 24-25 was not reported in 3B for the financial year 24-25, जबकि रिपोर्ट कहां किया गया, 25-26 में किया गया, मींस जो टैक्स है या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया 3B में, या इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया गया है या रिवर्स किया गया है, देन इट विल बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13। और जो इनका नेट अमाउंट है, what is the tax payable, what is the input tax credit available, and what are the difference, means I have paid through the cash or credit, all these amount will be reported in table number 9 and table number 14. कैसे रिपोर्ट करेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा। टेबल नंबर 4 related to outward supply liable to tax and inward supply liable to tax एंड एडवांस लाइबल टू टैक्स। तो टेबल नंबर 4 के अंदर ये आपके 3 टाइप के आइटम आने वाले हैं, जहां पर आपको आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स की, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्सेबल अमाउंट टैक्स, देन RCM उसका टैक्स, और जो एडवांस मिला है उसका टैक्स, ये टेबल नंबर 4 का पार्ट बनेगा। इन टेबल नंबर 5 रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट ऑल सच टाइप ऑफ सप्लाई ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल। अब जीरो रेटेड सप्लाई है, यदि विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन ऑप्ट किया गया है, देन इट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 4। और यदि जो जीरो रेटेड सप्लाई है, ऑप्शन इज अवेल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, देन इट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 5। अगर मान लीजिए 23-24 का सारा डेटा, सॉरी 24-25 का सारा डेटा 24-25 की 3B में रिपोर्ट कर दिया, तो टेबल नंबर 10, 11 में कुछ भी नहीं आएगा, 12, 13 में कुछ भी नहीं आएगा। 10, 11, 12, 13 में तभी आएगा जब 24-25 का कोई भी डेटा मैंने 25-26 में रिपोर्ट किया है। अब मैं आपको अमेंडमेंट दिखाता हूं, फिर इन टेबल पे मैं आपको दोबारा आऊंगा। ऑल दीज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार की आई है, इन ईच financial year there is a requirement to give the exemption
of those registered person to those registered person whose aggregate turnover was less than 2 crore rupees, because government don't want to upload GSTR 9 for those person whose aggregate turnover for the financial year less than 2 crore rupees. और हर साल नोटिफिकेशन आता था, बट दिस टाइम गवर्नमेंट ने एक ही बारी में सारा काम कर दिया. This notification number 15 by 2025 clearly stated that if aggregate turnover is less than 2 crore, then there is no need to file any GSTR 9. These person are exempted from filing the GSTR 9, not only for the financial year 24-25, for ongoing onwards financial year also. अब दोबारा नोटिफिकेशन इसका नहीं आने वाला है. Now, I am coming to the important amendment with respect to table number 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आया है इस बार की जीएसटीआर 9 में, टेबल नंबर 16 में है, सॉरी टेबल नंबर 6 के अंदर है. टेबल नंबर 6 में उन्होंने क्या किया है, एक नई टाइल ऐड कर दी है 6A1. What is the reason for adding this tile in table number 6A1? 6A1 क्या रीजन है, मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूं. हो क्या रहा था, मान लीजिए 23-24 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है. 23-24 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि 24-25 में क्लेम किया गया. 23-24 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि 24-25 में क्लेम किया गया. Because this has been claimed in 24-25, so it become the part of table number 6A. हमें पता है 6A का पार्ट बन रहा था. और हो क्या रहा था, इसकी वजह से टेबल नंबर 6J में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था. वाई दिस डिफरेंस वाज क्रिएटेड, क्यों हो रहा था ये इसलिए हो रहा था बिकॉज देयर वाज नो मैकेनिज्म इन GSTR 9 विच कैटर्ड दिस डिफरेंस. ये आना ही आना था. और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो एआई था ना, वो नोटिस रेज करता था. एआई इस डिफरेंस को पकड़ता था इन टेबल नंबर 6J. मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर 1 मिनट के लिए, GSTR 9, यस दिस इज, आई थिंक मिस्टर लोकेश GSTR 9 इज विजिबल नाउ. Yes. यस, टेबल नंबर 6, दिस इज टेबल नंबर 6. जो 23-24 का आईटीसी 24-25 में रिपोर्ट किया गया, वो यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड होता है 6A में. अब क्या था लास्ट ईयर तक, ये 6A1 नहीं था. सपोज 100 रुपीज का आईटीसी था, यहां पे 6A में 100 रुपीज का आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होता था. बिकॉज दिस आईटीसी वाज रिलेटेड टू 23-24, और मैं अभी ये मान के चल रहा हूं देर इज नो अमेंडमेंट, देर इज नो 6A1 इन दी GSTR 9, तो मुझे क्या करना होता था, उसको 6B2H में बायफरकेट नहीं करना होता था. जब 6B2H में मैं उसको बायफरकेट नहीं करता था, देन ऑलवेज देयर वाज ए डिफरेंस इन 6J. तो जो 6J में डिफरेंस आता था, 6J में नेगेटिव का डिफरेंस आता था, और ऐसा ऐसा appear होता था that registered person has claimed the excess ITC because difference was in negative terms. अब क्या हो गया, अब क्या होगा, because this ITC was related to 23-24, because I have claimed input tax credit of rupees 100 23-24 and 24-25, so it will appear in 6A, and in 6A1 I will deduct 100 rupees here, and in 6A2 amount will be 0. कोई अमाउंट नहीं आएगा यहां पर, बिकॉज देयर इज नो अमाउंट. सो आई विल नॉट बायफरकेट इन 6B, C, D, E, H. कोई मैं बायफरकेट नहीं करूंगा, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन टेबल नंबर 6J. इन टेबल नंबर 6 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन 6A1. अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि 6A1 में कौन सा अमाउंट रिपोर्ट करना है. मैं पहले आपको टोटल बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं. नेक्स्ट,
ये काम क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट। मुझे लग रहा है कुछ इशू है, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे काम कर लेता हूं। टेबल नंबर 6H, सेकेंड अमेंडमेंट। दिस इज माई टेबल नंबर 6H। लोकेश जी, कुछ इशू है, ये स्क्रीन मेरी काम नहीं कर रही। सर ये दिख रहा है आपका 999 अभी दिख रहा है। 9 दिख रहा है ना? कोई हाँ। बात नहीं, एक्चुअली क्या है, एरो की काम नहीं कर रही मेरी। कोई बात नहीं, अभी मैं हम्म, माउस से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक क्योंकि ये जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना डिजाइनिंग, कुछ है। बैकग्राउंड में पर्सन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। हाँ, गलती से वो हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है सर। हम्म। दूसरा जो अमेंडमेंट है, आप याद करिए, लास्ट ईयर क्या होता था, बड़ा प्रॉब्लम आता था कि 6B में रिक्लेम रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, 6H में रिपोर्ट, जो रिक्लेम है वो रिपोर्ट करना है नहीं करना है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इसका बिल्कुल फंडा ही क्लियर कर दिया। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन सा 6A1 में रिपोर्ट होगा और कौन सा आपका 6H में रिपोर्ट होगा। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया है, 6H में एक अमेंडमेंट किया है। अभी इसका थोड़ा एग्जांपल दूंगा। और एक 6M के अंदर क्या था, एक इशू क्या आ रहा था, कुछ पर्संस क्या कर रहे थे, जो 6J में डिफरेंस आ रहा था ना, उसको 6M में रिपोर्ट कर रहे थे। एंड इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन इन GSTR 9 विद रेस्पेक्ट टू 6M, वो कुछ और कह रहा था, और यहां पे 6M में कुछ और आ रहा था। तो जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था वो का वो इन्होंने यहां पे लिख दिया। एनी अदर बट नॉट स्पेसिफाइड अबाउ, ये सारा इन्होंने क्या किया, ये सारा यहां से इन्होंने डिलीट कर दिया, और जो डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन में था वो यहां पे लिख दिया। ये इन्होंने यहां पे सही काम कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेबल। मैंने क्या किया है, जो यूजर्स है मेरे, अभी जो मेरे को स्क्रीन पे जो पीपीटी देख रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, एक कंपैरेटिव टेबल बनाई है। दिस इज रिलेटेड टू 23-24, दिस इज रिलेटेड टू 24-25। In case of 23-24, you can see table number 6H, amount of ITC reclaimed other than B above under the provision of the Act. Now, in table number 6M, other than B above, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा था amount of ITC reclaimed other than B above in 23-24, in 24-25, amount of ITC reclaimed under the provision of the Act and other than B above has been deleted. And in 6M, you can see any other amount ITC availed but not specified amount. This was related to 23-24. Now in 24-25, description is totally changed with respect to the 6M ITC availed through the ITC 1 to ITC 2A other than 3B and Tran 1 above. I have made this comparative tables just for the reference. Next. मैं एक मिनट सर, मैं इसको ना स्टॉप शेयर करके एक बार दोबारा मैं इसको स्क्रीन शेयर करूंगा। आई थिंक कुछ इशू है। नेक्स्ट, दिस इज टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। न्यू टाइल्स हैज बीन एडेड एज पर रूल 37A, बिकॉज पहले कोई इसके लिए अलग टाइल नहीं थी। रूल 37A क्या है, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। रूल 38 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बैंकिंग के केस में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होता है। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए कोई डिफरेंट टाइल नहीं थी, अब यहां पर इन्होंने डिफरेंट टाइल दे दी है रूल 38 के लिए। दिस इज 23-24, टेबल नंबर 7। देर इज नो 37A, देर इज नो 38, बट इन 24-25 देर इज रूल 37 एंड रूल 38। नेक्स्ट, इन टेबल 8 में इन्होंने क्या किया है, पहले क्या हो रहा था, प्रॉब्लम थी 6B से भी 8B में डेटा आता था और 6H से भी 8B में डेटा आता था। नाउ 8B इज डी लिंक विद 6H। अब 8B में जो डेटा आएगा केवल 6B से आएगा, और इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो दिस इज 23-24, 8B, sum total of 6B and 6H above. Now there is no 6H in table 8B. नेक्स्ट, टेबल नंबर 8 एक बहुत
इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? जब जीएसटीआर 9 हम फाइल करते थे, जो उसकी टेबल नंबर 8 है, तो वहां पे क्या होता था? जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उस पर कितना आईजीएसटी पे किया, इट विल कैप्चर्ड इन टेबल 8G। और उसके बाद क्या होता था? बस वो हमसे ये पूछता था कि 8G में जो आपने पे कर दिया, हाउ मच आईजीएसटी वाज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बस सिर्फ इतना पूछता था। और देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट आई हैव डिपॉजिटेड 120 रुपीज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट आई हैव क्लेम्ड ओनली 100 रुपीज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो क्या हो रहा था 20 रुपीज के साथ? इट डायरेक्टली गोज टू दी टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर। मींस आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया था फॉर 20 रुपीज, लेकिन वो रिपोर्ट यहां हो रहा था। अब उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा और नई टाइल ऐड कर दी 6H1। 100 रुपीज 6H में आएगा, 20 रुपीज H1 में आएगा। नाउ इट विल नॉट गोज टू दी आईटीसी टू बी लैप्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। यहां पर बिल्कुल जाने वाला वो नहीं है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। टेबल नंबर 9, पहले क्या था? टैक्स पेबल, टैक्स पेड, सिर्फ यही कॉलम थे। बट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 दे हैव एडेड अनदर कॉलम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेबल एंड पेड। यदि आपका टैक्स पेबल और पेड में कोई डिफरेंस है, पहले आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन अब ये आपको जब जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो यहां पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा, खुद कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट है, मुझे लगता है ये एआई के परस्पेक्टिव से है। जब कंप्यूटर ऑनलाइन नोटिस जनरेट करेगा, जब एएसएमटी 10 आएगा, तो वहां पे ये पता लगा लेगा कि यहां पर कोई डिफरेंस है या नहीं है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी दिखाई है यहाँ पे। दिस इज फॉर 23-24। देयर इज नो column number 8 and 9, but here in 24-25 you can see this is the column number 8. This is the total amount paid via cash and ITC, and this is the difference between the paid and payable. टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, कोई अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है सिवाय डिस्क्रिप्शन चेंज करने के। एक प्रॉब्लम थी, जब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते थे तो कुछ पर्संस के दिमाग में कंफ्यूजन अराइज हो रहा था। सो गवर्नमेंट हैज amend the description all these tiles, table number 10, 11, 12, 13, and one important aspect, up to financial year 23-24 table number 12 and table number 13 was optional, but for the financial year 24-25 table number 12 and table number 13 is mandatory. So please take a note on it. अगर आपने इसको ऑप्शनल जान के छोड़ दिया और कोई अमाउंट रिपोर्ट नहीं किया, मींस यू हैव रिवर्स द आईटीसी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और यू नेक्स्ट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, or if you have claimed any input tax credit in the next financial year up to the specified period, so you need to report reversal or claim of input tax credit in table number 12 and table number 13. और जैसा कि टेबल नंबर 9 के अंदर था, टेबल नंबर 14 इसमें भी एक नया कॉलम ऐड कर दिया है डिफरेंस का, पेबल एंड पेड का। नाउ यस यस, दिस इज कंप्लीट, दिस इज आल्सो कंप्लीट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, लेकिन इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपके साथ 3 केस स्टडी लूंगा, 3 केस स्टडी, और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाउ अमाउंट विल बी रिपोर्टेड with respect to the ITC availed, reverse and reclaim in the GSTR 9 in financial year 24-25. I want to take first case study. There may be a possibility that input tax credit was claimed in financial year 23-24. Input tax credit, this same input tax credit reversed in 23-24 itself, and it has been reclaimed in financial year 24-25. 23-24 में क्लेम किया, 23-24 में रिवर्स किया, 24-25 में रिक्लेम किया। दिस इज माई फर्स्ट केस स्टडी। नाउ माई क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, where this reclaim will be reported.
Please answer me in chat box. My question is that I have claimed input tax credit in 23-24. I have reversed input tax credit in 23-24. Now I have reclaimed this input tax credit in financial year 24-25. Now where to report this amount? You can tell me through the chat. Anyone? Acha. Mr. Gaurav, 6A. Table 6S, sir. Table 12. Venu Prasad table. 6A1, 6H. Different persons, different answers. Most of answer is 6H, 6A, 6A1. Okay. If it is of 37, 37A rule, then 6A, 6A1. हे भगवान कितने सारे आंसर आ गए. Mix up answer. So please note down my reply. What is the ITC if permanent reverse in 24-25? Then where to report? I will answer it. But first, I want to answer my question. If this amount which I want to reclaim is related to on account of Rule 3737A, I have reversed in 23-24. I have claimed first time claim in 23-24, reversed in 23-24, and reclaiming in 24-25, and this amount is related to on account of Rule 3737A, then this amount will be reported in table 6H of GSTR 9 of 24-25. If this amount is not related to Rule 3737A and I am reclaiming this amount in 24-25, then this amount will be part of table number 6A1. This is the first case study and answer. Rule 3737A के कारण है reclaim, then it will be part of 6H. और यदि रूल 3737 के कारण नहीं है, किसी अन्य कारण से है, then it will become part of 6A1. Now, next case study. If input tax credit was claimed in 24-25 itself and also reversed in 24-25, and I am reclaiming in 24-25, then where to report? My question is that 24-25 में क्लेम किया, 24-25 में रिवर्स किया और 24-25 में ही रिवर्स कर रहा हूं, then where to report this reclaim amount? I am asking only reclaim amount because I think everyone know that when I claim this amount first time, it will be reported in table number 6B. And because I have reversed in 24-25, it will be reported as reversal in respective table of table number 7. But my question is related to where to report this reclaim amount if I am reclaiming in 24-25. Okay. No effect. Ankur CA, no effect. Ruchi Achal, table number 13. Most of answer is 6H. Case study screen shown. Sri Rao, 6H. Mr. Hiren Kumar, nowhere. And Mr. Rishabh Multani, 6B, 6H, 7. All three tables, 6B, 6H. Sir, you are correct. My question was related to reclaim. So this reclaim will be part of table number 6H only. Because this ITC related to 24-25 claim, reverse and reclaim. So this ITC at the time of reclaim will not be bifurcate between the reclaim on account of Rule 3737A or on account of other than Rule 3737A. Thumb rule is 24-25 में लिया, 24-25 में रिवर्स किया, 24-25 में रिक्लेम कर रहे हैं, देन इट विल बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 6H. रिक्लेम 6H. बाकी सब आपको पता है. फर्स्ट टाइम क्लेम विल बी 6B and first time reverse will be table number 7, but reclaim will be part of table number 6H. Yes. Next, Raj Kishore Prasad.
क्लेम 6B, रिवर्सल 7, रिक्लेम 6H. Perfect. Raj Kishore ji, your answer is perfect. Vrinda Gupta, reclaim is 6H, answer is perfect. Now, next question. Next case study. My ITC is first time I have claimed my ITC in 24-25. I have also reversed this ITC in 24-25. But I have reclaimed this ITC in 25-26. Then where to report? क्वेश्चन सब तक पहुंच गया होगा, मुझे उम्मीद है। 24-25 में क्लेम किया, 24-25 में रिवर्स किया और 25-26 में रिक्लेम किया। तो रिक्लेम की बात कर रहा हूं मैं। आई एम आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग रिक्लेम, वेयर टू रिपोर्ट। यस, टेबल नंबर 13, नोवेयर, नवीन भारतीय, नोवेयर, संतनाम राजगोपाल 6A, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट आंसर। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूं आपको, इन 25-26 this amount will be reported if it is related to rule 3737A in table number 6H. If it is not related to, if reclaim is not on account of rule 3737A, then it will be reported in table number 6A1. अभी टेबल नंबर 13 की भी बात करूंगा। सीए हिरेन कुमार, नोवेयर, सर इट विल बी रिपोर्टेड। I am asking with respect to reclaim only. I'm not asking, I'm not asking with respect to reclaim in 24-25. वो मेरा एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे आपने 23-24 का 24-25 में रिपोर्ट किया था इन टेबल नंबर 6H, टेबल 6A1, इसी रूप में आपका 25-26 में GSTR 9 में it will be reported if it is related to rule 3737A in 6H other than rule 3737A, then it will be reported in table number 6A1. Reclaim will be in next year. Ankit ji, okay. Table 8C and table 13. Table 8C और 813. अच्छा, पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं टेबल 13 और 8C पे जाऊंगा। How many participants believe that if I am reporting any amount in table number 13, it will be part of table 8C? How many? Any participants who agree? मिस्टर ऋषभ टोल्ड दैट नॉट नेसेसरी। माय क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या टेबल नंबर 13, मैं भी 24-25 की बात नहीं कर रहा, जो टेबल नंबर 13 है क्या उसी का अमाउंट टेबल 8C में रिपोर्ट होना है? रुपेश यस, मिस्टर हिरेन एग्री, ऋषभ नो, नो एग्री, नो नो, यस नेसेसरी। हे भगवान, और ज्यादातर के आंसर यस में आ रहे हैं। ऐसा है, जो ये माइंड सेट है ना, इफ एनी अमाउंट इज रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 13 देन इट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 8C, देन those those participants whose answer is yes, please unlearn this fundamental. Why? Because in FAQ this fundamental रिपोर्टिंग टोटली चेंज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब देखिए मैं आपके साथ में ना एक और एफएक्यू है जो मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर करता हूं एफएक्यू, बिकॉज देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट अमाउंट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 13 बट नो नीड टू रिपोर्ट इन टेबल नंबर 8C, and there may be a possibility amount will be reported in table number 8C, but there is no requirement for reporting of amount in table number 18. I am directly going to a question number 17. I think this question will be question number 17. 24, 23, yes. This is the question. एक मिनट, क्या हो गया?
In what cases ITC shall be reported in table number 8C of GSTR 9? This is the question, sir. In what cases ITC shall be reported in table number 8C? There are only two cases. In these two cases, amount will be reported in table number 8C. What are these two cases? एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ इशू है यहां पर. No. Okay. ITC pertaining to 24-25, which is a part of 2B and auto-populated in table 8A of GSTR 9, but which has not been claimed by the recipient during 24-25. Hence, he is availing the corresponding ITC first time in table 4A5 of GSTR 3B of next financial year till the specified time period. बड़ा सिंपल सा इन्होंने बता दिया. जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 24-25 का था, 24-25 की 2B का पार्ट बन गया है और 8A में ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, जो कि रिसिपिएंट के द्वारा 24-25 में क्लेम नहीं किया गया है, बट फर्स्ट टाइम इट इज क्लेम्ड इन 25-26, then this amount will be reported in table number 8C only. केवल 8C का पार्ट बनेगा ये वाला. अब क्यों बनेगा इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा. एंड अनदर एग्जांपल इज supply pertaining to 24-25, but supplier has not reported the invoice during the financial year 24-25, but supplier reported the invoice in GSTR 1, which is filed for the financial year 25-26. क्योंकि अब सप्लायर के द्वारा जो इनवाइस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया गया है, देन इन दिस केस रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज ये 2B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा. जब 2B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम उसने 25-26 में इस अमाउंट को फर्स्ट टाइम क्लेम किया है. सो दिस अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 8C. और इसी में क्या किया हुआ है, इसी में ना नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं दो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. सेकंड एग्जांपल, नॉट फर्स्ट. Mr. A has purchased the goods in the month of January 2025. However, supplier has not reported this invoice in GSTR 1 for January 25. सिंपल सी बात है, जनवरी 25 में मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया, बट सप्लायर हैज नॉट रिपोर्टेड दिस पर्टिकुलर इनवाइस इन जनवरी 25. Supplier has reported this invoice in April 2025. So, Mr. A will claim this ITC first time in 25-26. So, this particular invoice, ITC, first time claim in 25-26. So, this will be part of table number 8C and table number 30. ये दो पॉइंट ऐसे हैं. अच्छा, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आपका नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया गया है, ना तो वो टेबल नंबर 8C का पार्ट बनेगा और ना टेबल नंबर 13 का पार्ट बनेगा. इस केस स्टडी को लेते हैं. एक इनपुट टैक्स क्रेडिट था 24-25 का, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट था 24-25 का. 24-25 में फर्स्ट टाइम क्लेम किया गया, 24-25 में रिवर्स किया गया और रिक्लेम किया गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. यदि ये रूल 37-37A के कारण नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिक्लेम किया जा रहा है, देन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 13 एंड इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 8C. दिस इज गिवन इन द एग्जाम्पल विच इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस प्रेस रिलीज. और आप देखेंगे यहां पर क्लियर बताया हुआ है, रूल 37-37A के कारण यदि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिक्लेम किया जा रहा है, then it will not be part of 8C and it will not be part of table number 13. लेकिन यदि रूल 37-37A के अलावा किसी अन्य रीजन से रिक्लेम किया गया है, then क्या होगा, इसका भी आंसर इसमें दिया हुआ है. then it will not be part of 8C. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज नोट. any ITC which is claimed in 24-25, reversed in 24-25 and reclaim in 25-26, reason other than rule 37-37A, then it will be part of table number 13 only. It will not be part of 8C. तो इसीलिए मैंने आपको कहा था
जो अभी तक फंडा आपने लर्न कर रखा है कि जो टेबल नंबर 13 का पार्ट बनेगा वो टेबल नंबर 8C का भी पार्ट बनेगा। सो यू हैव टू अनलर्न इट। अगर आपने नहीं किया ना तो GSTR 9 इस बार की गलत जाने वाली है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, प्लीज रीड ऑल दीज FAQ केयरफुली। और FAQ से जो एक बात निकल के आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपका टेबल 8D में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। टेबल 8D, व्हाट इज टेबल 8D? दिस इज टेबल 8D, 8 7, एंड दिस इज टेबल 8D। ये जो टेबल 8D है ना, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। टेबल 8D, इसमें डिफरेंस आना चाहिए। या तो आपका जो 8A में आया है ना ITC, आइदर इट विल बी पार्ट ऑफ 8B और इट विल बी पार्ट ऑफ 8C। सो 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इस बार जो भी ये FAQ आए हैं, इन्होंने इस बात को ध्यान रखा है कि 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? 24-25 में क्लेम किया, 24-25 में रिवर्स किया, और 25-26 में रिक्लेम किया, तो वो अदर देन रीजन रूल 3737A है। तो वो आपका टेबल नंबर 13 का पार्ट तो बनेगा, 8C का पार्ट नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, जब मैंने उसको 24-25 में फर्स्ट टाइम क्लेम किया था, इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 6A एंड इट विल बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 6B। when it will be part of table number 6B, then it will be auto populated in 8B। 100 रुपीज का ITC था, 24-25 में क्लेम किया, 24-25 में रिवर्स किया, 6A में 100 रुपीज आएगा, 8A में भी 100 रुपीज ही आएगा, 8A में भी 100 रुपीज आएगा, बिकॉज ये मेरा 2B में आ चुका था। जब मैंने 6B में रिपोर्ट किया तो 6B ITC एज पर 6B यहां ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। अगर मैं उसको 8C में रिपोर्ट करूंगा तो ये डुप्लीकेट रिपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज इन टेबल 8A फिगर इज 100 रुपीज एंड ऑलरेडी इन टेबल 8B रुपीज इज 100। सो इफ आई report this amount in table 8C as 100, then there is a difference of rupees minus 100 in table 8D. So it will create a difference. Due to this reason, this FAQ particularly give this answer that it will be part of table number 13, will not be part of table number 8C। फंडा ये है 8D में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फंडा ये है 8A में जो ITC आ गया वो या तो 8B का पार्ट बनेगा, 8C का पार्ट वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। Now I want to ask another question to all of you. Very simple question. चैट बॉक्स कहां चला गया जी? यस, CA Hiren Kumar, thank you so much. My concept is crystal clear now. Thank you जी। If 8D difference result is in positive figure, then you need to check what are the region of difference. Now another एक क्वेश्चन और लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 23-24, 20 देयर वाज ए रिवर्सल विद रेस्पेक्ट टू 23-24। कुछ भी रिवर्सल हो सकता है, आप भूल गए रिवर्सल करना और आपने क्या किया, 24-25 में रिवर्स कर दिया। वो 100 रुपीज का एक इनपुट टैक्स क्रेडिट था, आपने 23-24 में क्लेम किया, बट आपको बाद में पता चला, सो यू हैव रिवर्स्ड इन GSTR 3B फाइलिंग फॉर द पीरियड ऑफ 24-25। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, 8D should be 0? I think you are asking the questions. My suggestions to you, try to this, that 8D should be 0. Effectively it should be 0. There should be no difference if all tables are correctly filled and all ITC correctly claimed or reversed. Now please, Mr. Siddharth Motwani, listen my question. I have claimed an ITC in the financial year 23-24. Now I need to reverse in 24-25 and I have reversed in 24-25. So please tell me where to report this reversed ITC in 24-25। 100 रुपए का ITC था, मैंने क्या किया, 23-24 में गलत ले लिया था, 24-25 में रिवर्स किया, तो 24-25 की 9 में मैं कहां रिपोर्ट करूंगा, कहां रिपोर्ट करूंगा?
प्रकाश साहू, नो रिपोर्टिंग, नो नीड टू रिवर्स। वाई? मेरे पास टेबल 7 है ना। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं टेबल 11 में। सर कैन यू रिप्लाई प्लीज? बट ओके, मैं ये बाद में रिप्लाई करूंगा। टू डिडक्ट इन 6A1, 6H इफ पार्ट ऑफ रूल 37, 37A, 7 इज करेंसी पीरियड। करेंसी मींस यू आर सेइंग करंट पीरियड। ओके मिस्टर प्रकाश, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं यही बात हाईलाइट करना चाह रहा हूं। मेरे पास में डेली ये क्वेरी आ रही है, सर 23, 24 का आईटीसी था और मैंने 24, 25 में उसको रिवर्स कर दिया, तो मुझे रिपोर्ट कहाँ करना है? इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको ना एक इंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। यस, दिस इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन पैरा 2A of GSTR 9. This instruction says in the table again serial number 4, 5, 6, 7, the taxpayer shall report the values pertaining to the financial year only for which annual return is being filed. And next para, the value pertaining to the preceding financial year shall not be reported here unless specifically required. This is a clear cut condition that in any case, no figure for the preceding financial year will be reported in table number 4, table number 5, table number 6, table number 7 unless specifically required. And in GSTR 9 for the financial year 24-25, there are only two tiles, 6A1 and 6H, in which it is specifically provided that figure for the preceding financial year can be reported only to these two tables, 6A1 and 6H. इसके अलावा कहीं रिपोर्ट नहीं करेंगे। सो जो मेरा एग्जांपल था कि 23-24 का आईटीसी है, वो 24-25 में आपने रिवर्स किया है, सो इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 7, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ 6A1 ऑल्सो। तो इस बार चीजें बहुत आसान कर दी हैं। बड़ा ही आसान है GSTR 9 को बनाना, लेकिन तब होगा जब आप ये दोनों FAQ पहले पढ़ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको दिखा दिया है, बट मेरे को बाद में दिखाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, अभी पहले फॉर्म पे चलता हूं और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। फिर कभी रिपोर्ट नहीं करना है सीए ऋषभ। यस सर, इट विल नॉट रिपोर्टेड, इट विल इट विल इट विल नो वेयर रिपोर्टेड इन GSTR 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। I will reply Mr. Jayesh Shah. Sir, can you reply? Please, what if in financial year 23-24 temporary reversal was done and made permanent reversal in 24-25? I will reply, sir. अच्छा, अभी एक्चुअली सर क्या है ना, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ने लग गया तो मेरे पास में एक केस स्टडी और थी। यस, मैं आपको दिखा रहा था। यस, माय क्वेश्चन इज, आरसीएम की लाइबिलिटी है 24-25 की है, और आप 24-25 में GSTR 3B में आरसीएम का टैक्स पे करना भूल गए। Now, registered person has paid the RCM liability for the financial year 24-25 in 25-26, and RCM liability paid via GSTR 3B for the financial year 24-25 and 25-26. Where to report this RCM liability in 24-25? This is my question. 24-25 की आरसीएम की लाइबिलिटी है, 24-25 की मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन मैंने 25-26 की 3B में पे करी। सो मुझे 24-25 की GSTR 9 में कहां रिपोर्ट करनी है? एवरीवन इज सेइंग नॉट रिक्वायर्ड, नो रिपोर्टिंग। मिस्टर राज किशोर सेड 8C, नो रिपोर्ट। मिस्टर प्रकाश 25-26 ओनली। गौरव कश्यप, एनी अदर आंसर? केवल कुछ ने दिया, बाकियों को लगता है समझ में ही नहीं आ रहा। एनी अदर व्यू? इसके अलावा कोई तो कहे, क्योंकि एक आंसर मेरे पास में आया है। दीपा रिपोर्टेड इन 25-26, इट विल रिपोर्टेड इन 9C, इट विल रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 4। उद्या डालमिया 25-26 ओनली। ओके, परफेक्टली आंसर। इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ GSTR 9 for the financial year 24-25. It will be part of 25-26.
I will share this PPT with every participants, and I have taken this image from the technical guide prepared by the Institute of Chartered Accountant of India. And in this particular slide, it is mentioned that if there is a liability with respect to the RCM, and if it has been paid in the financial year for which we are filing the GSTR 99C, then it will be part of GSTR 99C for that particular financial year. If RCM liability paid in the next financial year, then it will not be part of GSTR 99C. For this particular financial year, it will be part of 25-26. So answer is, please don't miss please don't miss case study. पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं. Okay, please don't miss case study. No issue, sir. Next, another important aspect with respect to GSTR 9. GSTR 9 जो लास्ट ईयर तक की हमने फाइल करी थी ना, देयर वाज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नंबर 9, और दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्लियरली सेज if there is any additional liability when you are filing GSTR 9, you can pay this additional liability through DRC 03. And there is a clear-cut instruction. There was a clear-cut instruction that this liability will be discharged through cash only. And to the best of my knowledge, this was an incorrect statement, because registered person can use the input tax credit to pay the output tax liability. So this financial year, the government has corrected this instruction and what written down through electronic cash ledger or electronic credit ledger. So additional liability can be discharged through the electronic credit ledger. अच्छा, अब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं. प्लीज आंसर थ्रू द चैट. If my liability is related to RCM, there is a liability related to RCM and I have forget to pay it in financial year 24-25. In financial year 24-25. Now, as a registered person, I have received a notice from the department that there is a particular RCM liability and it is unpaid, it is short paid. Now, I want to pay this RCM liability and I have input tax credit in my credit ledger. So may I pay it through the credit ledger, or should I pay it through the cash? Cash only, no credit ledger. Allowed for RCM only through cash ledger. Cash ledger, no, only cash ledger. All answer are correct. It will be paid through cash only. But अगर आप पोर्टल पे जाते हैं ना, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते. बट इट इज नॉट माई एडवाइस that you paid it through the credit ledger. It should be paid through the cash only. So government has corrected this statement that additional liability other than DRC, other than RCM can be paid through electronic credit ledger. Next. Now, particularly, there are few change also in GSTR 9C. बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. देख लेते हैं क्या क्या चेंजेज हैं. This is the first important amendment. There is a table number 5 in GSTR 9C. Table number 5 particularly related to the turnover, related to the reconciliation, turnover as per the books of accounts, and turnover which is reported part of GSTR 9 if there is any difference. So there may be a difference for the exempted supply or maybe for the taxable supply. So every registered person, if there is a difference between the turnover as per the books of account or as per the GSTR 9, so he has to explain all these differences. Now, table number 7. Table number 7 is particularly related to reconciliation of taxable turnover. आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा. On 1st January 2022, the supply of restaurant service, if it is not being made from the specified premises, then liability to pay tax on supply of restaurant service cast on e-commerce operator. And actual supplier of restaurant service need not to pay any output tax on their restaurant supply. लेकिन ऐसा हो सकता था जो रेस्टोरेंट सप्लायर है वो
रजिस्टर्ड था और उसको अपनी जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी मैंडेटरी थी, बिकॉज देयर मे बी सम अदर कैटेगरी ऑफ सप्लाई विच लाइबल टू फॉरवर्ड चार्ज। अब क्योंकि उस रेस्टोरेंट वाले को खुद अपनी रेस्टोरेंट वाली सप्लाई पे टैक्स नहीं देना था, बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो क्या हुआ था, जो रेस्टोरेंट वाला था ना, उसकी इस सप्लाई को जिस पर उसको खुद टैक्स नहीं देना, कोई सेपरेट टाइल नहीं थी। सो दिस टाइम जीएसटीआर 9C में एक अलग से टाइल डाल दी गई है, D1। दिस इज सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 95 सप्लायर टू रिपोर्ट, बिकॉज दिस टेबल नंबर 7 इज रिलेटेड टू टैक्सेबल टर्नओवर। जो उसकी टोटल टर्नओवर है ना, उसमें से एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को या उस टर्नओवर को बाहर करना है जिस पर सप्लायर को टैक्स नहीं देना। यहां पर केवल और केवल टैक्सेबल टर्नओवर आनी है। तो क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा था रेस्टोरेंट वाली सप्लाई पे, देयर मे बी अदर सप्लाई विच इज गिवन इन नोटिफिकेशन नंबर 17 बाय 2017, these all services specified in section 95 एंड जो नोटिफिकेशन नंबर 17 बाय 2017 है ना, it is issued by it is issued under the power given section 95। तो यहां पर क्या हुआ, रेस्टोरेंट वाले को टैक्स नहीं देना, तो इसके लिए एक नई टाइल यहां पर इन्होंने ऐड कर दी। बढ़िया किया, जो पहले से होना चाहिए था। दे रहा है दुरुस्त है, कोई इशू नहीं है। नाउ जीएसटीआर 9C टेबल नंबर 9, क्या रिपोर्ट करना होता है, रेट वाइज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, रेट वाइज आरसीएम लाइबिलिटी एंड एनी अदर टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या हुआ, सप्लायर कौन था, रेस्टोरेंट। टैक्स किसको पे करना था, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो देयर वाज नो सेपरेट टाइल इन टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9C। दिस टाइम दिस फॉर्म कैप्चर टाइल K2। और इसमें क्या होना है, जो सप्लाई तो करी है रेस्टोरेंट वाले ने, टैक्स देना ई कॉमर्स ऑपरेटर को। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल रिपोर्ट दिस सप्लाई इन K2। नेक्स्ट, ओके, ये मैंने डिस्कस कर लिया। यहां पर भी क्या था, गलती थी फॉर्म में। क्या लिखा हुआ था, टू बी पेड थ्रू कैश, अब उन्होंने लिख दिया टू बी थ्रू कैश, टू बी पेड थ्रू कैश ऑब्लिक आईटीसी। सो इफ देर इज एडिशनल लाइबिलिटी occur through the GSTR 9C, then it can be paid through ITC also. Now 9C में भी लेट फीस का कॉलम ऐड कर दिया है, 9C में भी लेट फीस का कॉलम ऐड कर दिया है। फर्स्ट आई विल आस्क वन क्वेश्चन और फ्रॉम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, आई हैव फाइल्ड, सॉरी व्हाट इज दिस, मैं एक टाइप कर रहा था, ये अचानक क्या हुआ। अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे टाइप ही नहीं करने दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं। मैंने एक जीएसटीआर 9 है, वो मुझे फाइल करनी थी 31 दिसंबर 2025 तक, और मैंने क्या किया, 5 जनवरी 2006 को जीएसटीआर 9 फाइल किया, और 9C फाइल किया मैंने जो 9 है वो फाइल किया 5 जनवरी को, और जो 9C है वो 10 जनवरी को फाइल किया। लेट फीस कितने दिन की लगेगी और कैसे लगेगी, प्लीज। जीएसटीआर 9 फाइल्ड ऑन 5 जनवरी, जीएसटीआर 9C फाइल्ड ऑन 10 जनवरी, तो कितने दिन की लगेगी। मिस्टर राजेश जैन 5 डेज, ईशान मूलचंदानी 5 डेज, प्रथम 50 multiply by 5 for GSTR 9 only, for GSTR 9 5 days, 9C 10 days, Sire Naveen 10 days, 10 days for GSTR 9 or 9C, Mr. Naveen. Jagdish, late fees for 5 days, but you have filed 9C also, you have filed delay 9C also, and you are saying that late fees will be levied only for 5 days, 5 days plus 3 days, हे भगवान। 5 days for 9 and 10 days for 9C, गौरव कश्यप, नो नो, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब इन्होंने क्या किया है मैं बता देता हूं आपको, आप करेक्ट कर लेना प्लीज अपने आप को। एक नया कंसेप्ट आ गया है, कंप्लीट जीएसटीआर 9 पार्ट और पार्ट ऑफ द मंथ। रुचिका, 9C हैज नो लेट फीस। मैम,
You can see my slide. This slide related to late fees payable and paid. This item number 17 added in GSTR 9C, and this item is related to late fees on account of late filing of GSTR 9C. And you are saying that there is no column of late fees in GSTR 9C. बिल्कुल है, आप देखिए ना स्क्रीन पे, ये नया जो टेबल है वो ऐड हुआ है GSTR 9C के अंदर, टेबल नंबर 17। सर स्लाइड इज नॉट विजिबल, वाई स्लाइड इज नॉट विजिबल? लोकेश जी स्लाइड विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर। ओके, विजिबल है। देखिए ऐसा है, मेरा जो केस स्टडी था, 5 जनवरी को GSTR 9 फाइल हुई और 10 जनवरी को 9C फाइल हुई। अब एक कंसेप्ट आ चुका है, 9 कब कंप्लीट होगी? इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9C, देन 9 विल बी कंप्लीटेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 9C। क्योंकि यहां पर जो GSTR 9 है वो 5 जनवरी को फाइल हुई है और 9C 10 जनवरी को फाइल हुई है। तो इस केस में क्या होगा, जो 9 की लेट फीस है वो दो पार्ट्स में हो जाएगी, अप टू 5th एंड अप टू 10th। लेकिन कहां तक लगेगी? आपकी जो लेट फीस है वो टोटल सिंगल ही लगेगी, सिंगल लगेगी, डबल नहीं लगेगी। 5 दिन की जो लेट फीस है वो आपकी कब लगने वाली है? उसकी 9 के साथ, और क्योंकि आपने 10th को फाइल किया है तो 5 दिन की आगे 9C के साथ लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन की तो आपकी लगे 9 में और 10 दिन की लगे आपकी 9C में, ऐसा नहीं है। या तो आप टोटल कर लें, टोटल 10 डेज की लेट फीस लगनी है, लेकिन उसमें बायफर्केशन हो गया, बिकॉज यू हैव फाइल्ड GSTR 9 बाय 5th एंड 9C बाय 10th। सो फॉर 5 days late fees related to GSTR 9 and another 5 days it is related to GSTR 9C। लेकिन 10 दिन से ज्यादा की नहीं लगने वाली। ऐसा नहीं होगा कि 5 + 10 15 दिन की हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। इफ आई हैव फाइल्ड माई GSTR 9 ऑन 31 December 2025 and I have filed GSTR 9C on 10th January 2026, then how much, for how much days late fees will be levied? 10 days, yes, correct, this answer is correct। क्योंकि मेरा जो 9C है वो लेट फाइल हुआ है, और जो 9 का कंप्लीट फाइल करने का जो वो है ना, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरी 9 कंप्लीट कंप्लीट 9 तब मानी जाएगी जब मैं 9C फाइल करूंगा, तो 10 डेज के लिए लेट फीस लग जाएगी। अब मैं आपको देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू कैन सी द लेट फीस अंडर द इंटीग्रेटेड टैक्स, under the central tax, under the state or UT tax, but there is no provision levying of late fees under the integrated tax। I am unable to understand why this clause A 17A integrated tax put here। क्योंकि जो लेट फीस है ना वो तो या तो सेंट्रल टैक्स में लगेगी या स्टेट टैक्स में लगेगी। इंटीग्रेटेड टैक्स में कोई भी लेट फीस लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती। नेक्स्ट देख लेता हूं मेरे, यस, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है आपका। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, और क्वेश्चन से पहले मैं 1 मिनट बस आपको एक चीज और दिखा देता हूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। आज मुझे ना कुछ इशू तो लग रहा है सर इसके अंदर। यस, पहले तो मैं आपको थैंक यू कर देता हूं लोकेश जी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैं जितना मैं जो जो मुझे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, सबके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है कंसल्ट वॉइस के नाम से। GSTR 9 और 9C से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। कंसल्ट वॉइस कंबाइंड वर्ड है, कंसल्ट वॉइस के नाम से। यू कैन सब्सक्राइब दिस ऑल्सो। अब जो चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं, ठीक है लोकेश जी? एकदम सही सर, एकदम सही। हाँ, क्योंकि मुझे 8 बजे का आपने टाइम दिया था, और मैं एक बार क्वेश्चन लेता हूं सर, स्टार्टिंग से देख लेता हूं। वैसे तो चैट बॉक्स में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं।
अच्छा, ये तो सारे के सारे वो हैं कि जो मैंने पूछा। एक मिनट सर। 6H1 reclaim will be next year. Okay, no issue. GSTR 9 एडिशनल FAQ गौरव कश्यप ने डाल दिए हैं। 8C नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इट मींस रिक्लेम फ्रेश, यस मिस्टर MD मोहीउद्दीन। इट मींस रिक्लेम्ड इज इन 13, फ्रेश क्लेम इन 8C 13। बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच, माई कंसेप्ट इज क्लियर, थैंक यू जी। 8D शुड बी जीरो, यस 8D आइडली इट शुड बी जीरो। Sir, can you reply please? What if in financial year 23-24 temporary reversal was done and made permanent reversal in financial year 24-25? Very important question, Mr. Jayes. एक बार मैं इसको नोट डाउन करता हूं, आप भी करिए, तभी क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 23-24 में एक आईटीसी था और 23-24 में उसको टेम्परेरी रिवर्सल कर दिया। सो फर्स्ट it was a part of table 4A5, then it was a part of table 4B1. This is the case of 23-24 and made permanent reversal in 24-25। 24-25 में इसका परमानेंट रिवर्सल कर दिया। जब आप 24-25 में इसका परमानेंट रिवर्सल करेंगे तो आपने क्या किया होगा, पहले ये बताता हूं मैं आपको। आपने क्या किया होगा, आपने 24-25 में सबसे पहले इसको टेबल 4A5 का पार्ट बनाया होगा, टेबल 4A का पार्ट बनाया होगा। इसके बाद आपने इसको टेबल 4B2 का पार्ट बनाया होगा। इसके बाद आपने क्या किया होगा, इसको टेबल D1 का पार्ट बनाया होगा। ये तीन काम किए होंगे आपने इसका परमानेंट रिवर्सल करने के लिए। अब हमें देखना है कि 24-25 में ये कैसे अपीयर होगा। जब आपने टेबल A4 का पार्ट बनाया तो 6A में ऑटो पॉपुलेटेड होगा ये, ठीक है, 6A में ऑटो पॉपुलेटेड हो गया। इसके बाद में और कहां ऑटो पॉपुलेटेड होगा हमें ये देखने की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का आईटीसी था तो आप क्या करेंगे, इसको 6A1 का पार्ट बना देंगे। क्यों बनाएंगे 6A1 का पार्ट? जब आप इसको 6A1 का पार्ट बना देंगे सो इट विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 6A2। And if it is not part of 6A2 then it will not be auto populated in table number 7J। और मुझे इसको 6B का पार्ट नहीं बनाना, बिकॉज इफ आई हैव मेड दिस अमाउंट, if I have report this amount in table number 6B then it will automatically reported in table 8B। जब 8B में आ जाएगा, क्योंकि 24-25 में तो मैंने इसको रिक्लेम इसलिए किया था, मुझे परमानेंट रिवर्सल करना था। मेरे 2B का 2A का ये 23-24 में पार्ट बन चुका था, ये 24-25 में 2B का पार्ट नहीं बनेगा। और जब ये 2B का पार्ट नहीं बनेगा ना तो मेरे 8A में भी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। जब मेरे 8A में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा और मान लीजिए मैं इसको 6B में रिपोर्ट कर दूंगा तो 8D नेगेटिव हो जाएगा, 8A में नहीं आएगा, 8B में भी रिपोर्ट नहीं होगा, 8C में रिपोर्ट नहीं होगा। और मैंने आपको क्या बताया था इंस्ट्रक्शन नंबर 2A, प्लीज रिकॉल इंस्ट्रक्शन नंबर 2A where it was specifically written, it is specifically written in table number 4, 5, 6, 7 unless specifically specified, no amount for the preceding financial year will be reported in these 4 tables. So it is my humble request to everyone, before filing of GSTR 9 kindly read carefully all these 2 FAQs and instruction number 2A। instruction number 2 is very important। अच्छा, 2 पॉइंट और रह गए थे, अभी पहले मैं FAQ ले लेता हूं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। आप पता नहीं किस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे, मिस्टर जय शाह का दोबारा भी यही क्वेश्चन आया था, मैंने ये भी बता दिया। यस, फिर कब रिपोर्ट करना है, आई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, सेम डाउट, ये मिस्टर सतीश कुमार का कुछ डाउट है। मैं कोई सर बात नहीं, अनम्यूट करने दूं क्या? हाँ नोट करने दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं एक है। सेकंड, एक सेकंड। एंड नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम, विवेक दुबे जी पहले आप अनम्यूट हेलो कर लीजिए। यस। हेलो सर,
while filing GSTR 3B in 2425, we have wrongly put under temporary reversal 4B2. Actually, we should have put in 4B1. Now, in GSTR 9, the same thing can be put under table 7E. राजेश सर आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। Sorry. Can you repeat your question, sir? Sir, while filing GSTR 3B for the 12 months 2425, we wrongly put it under table 4B2. Actually, it should have been 4B1. Now, in So you GSTR. have reversed temporary. Yes, correct, sir. Now we are realized now after financial. Can you show that in table 7E now in GHR 9? Why, sir? You want to reverse it permanently, sir? Yes, we have decided that all permanently only. Sir, 24-25 is over now. You can do it 25-26. Just put this amount in table 4A5. Then put this figure in table 4B1 and thereafter put this figure in 4D for Delhi D1 because you have Correct, sir. temporarily reversed this amount. Understand, sir. But now, tomorrow, if we get a notice in GSTR 9 audit 2425 notice, so we have put it under temporary reversal. Then, Sir, you will not receive any notice. You will not receive any notice for the next financial year because this particular amount will be restricted only up to the 6A1 because there is a specific tile and it will not be part of 6B2H. It will not flow in any other table. So but while I think you will not receive any notice. see, we And have if you received received any notice, sir, if you received any notice, then you can explain it. Okay. Because we just now we received for financial 2023. Those time our people what they did, they entire thing they put it under temporary reversal. They did not do in permanent reversal. No, as per your suggestion, had you have done subsequently the 3B return in the by using permanent reversal, always you could have justified asking us saying that subsequently did it. Correct, na, sir? Yes. Yeah. Thank you, sir. Yeah, I'll do that one. Yeah. Thank you. Yes, Vivek Dubey हेलो ji. यस राजेश सर सादर प्रणाम। प्रणाम जी। हेलो सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो 9C की जो टेबल 5B और 5C हैं इनका थोड़ा सा अंतर भी हमें बता दीजिएगा। और एक प्रश्न और था सर कि क्या ये जो GSTR 9 की जो टेबल 6B से लेके 6H में हमें कौन से ईयर की इनवाइस को शामिल करना है ITC को, उस पर भी थोड़ा आपका मार्गदर्शन मिल जाता। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है 6B से लेकर 6H तक कौन से साल की आईटीसी का है, जिसका हम 9 फाइल कर रहे हैं उसी साल की जो आईटीसी है, उसी साल के जो इनवाइस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जो इनवाइस था वो 6A से पहले ही बाहर किया जा चुका है। अब तो हमारे पास 6A2 में केवल वही आईटीसी बचा है जो 24-25 का है और उसी से रिलेटेड आईटीसी का बाइफरकेशन किया जाना है। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन था 5B 5C, ये किस 9 है या 9C है? राजेश सर 9C। 9C की टेबल नंबर 5B। अच्छा, आप टेबल नंबर 5 क्या बात कर रहे हैं जहां पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का GSTR 9 की टर्नओवर के साथ रिकंसिलेशन है। तो इसमें एक तो मेरे ख्याल से 5B अनबिल्ड रेवेन्यू की है क्या सर? प्लीज मुझे याद दिलाना। जी सर 5B है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 5B है। हाँ, और सर राजेश सर 5C है अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखिए, जो 5B होगी ना, मुझे लग रहा है वो ऐड हो रही होगी सर, या माइनस हो रही है बिल्कुल सर? राजेश सर आपकी स्मृति एकदम सही है। 5B ऐड हो रही है और 5C भी ऐड हो रहा है, मतलब अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये भी एडिशन है और अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इसका भी एडिशन हो रहा है, दोनों एडिशन में। हेलो। यस। तो क्या है सर, जो आपने कहा ना अनबिल्ड रेवेन्यू है, एक्चुअली क्या है, जो अनबिल्ड रेवेन्यू है ना ओपनिंग का, क्या हुआ था सर कि लास्ट ईयर अनबिल्ड रेवेन्यू दिखाया था और इसका इनवाइस नहीं बनाया गया, क्योंकि अब इस साल इसका इनवाइस बन गया है तो वो 9C का पार्ट बन गया, 9 का भी पार्ट बना है, इसलिए उसको टर्नओवर में ऐड किया जा रहा है। और 5C जो अनएडजस्टेड एडवांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस आए थे, अब इसका इनवाइस बन गया होगा तो वो मेरा 9 का पार्ट बना है, इसलिए इसको ऐड करवाया जा रहा है सर। यस मिस्टर सुनील। हेलो सर। हाँ यस हेलो। महेश। सर टेबल 6 auto populated coming from all other ITC. यस
But we need to consider for net ITC claimed in 3B or else other ITC we need to reconcile. Sir, in table number 6A, there Correct. will be gross ITC and it Correct. will be auto-populated from the table 4A5. Correct. In That is table all number other 6A, ITC. yes, sir, all other ITC. In table number Correct. 6A, there is no concept of net ITC. But actually in 3B, no, in 3B, net ITC only we have climbed. Correct, na? Net Sir, ITC only adjusted. sir, in in GSTR 3B, there is a table number 4C in which net ITC is appear. Correct, sir? Correct. Net ITC only it's considering, no? No. For In table number 6A, net ITC will not be considered. In table number 6A, gross ITC will be correct, considered. yeah, correct. Here considering is all other ITC only. Okay. But my concern is we have to reconcile to that figure or else we have to consider reconcile to net ITC. No, you have to reconcile gross ITC. Gross ITC. See, gross ITC. Okay, gross ITC. Gross ITC we need Because to compare. first, sir, please listen. Please listen Yeah. me. Supplier will report their invoice in GSTR1 and it will be auto-populated in your 2B. It will Correct. be part of table 8A. So you have to decide that this is a eligible ITC, ineligible ITC. You have to decide it. So you will not consider net ITC with respect to table number 6A. You will consider gross ITC with regard to table number 6A. Hello. Yes, sir. Correct. Hello. Hello. Yes. Sir, as per hello. Yes, sir. Sir, as per 9C, we have a multiple states turnover. How to report and other income also is there. So we have to show each state-wise reconciliation in the 9C. Sir, suppose you have 19 registration and there is a Okay. single balance sheet. Okay. This is a perfect case for your query, sir. Yes, sir. Definitely. Thank you. There is a single balance sheet, but you have 19 registration. So for the purpose of table number 5 of GSTR 9C, you carve out the aggregate turnover of that particular state for which you are filing the GSTR 9C. आपको इंटायर GSTR आपको जो इंटायर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, दैट पर्टिकुलर टर्नओवर विल नॉट बी पार्ट ऑफ टेबल 5. द टर्नओवर विल बी कार आउट. और आपके पास तो ना वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस. Yes. You have the trial balance. And Yes. what I want to suggest, please, when you attach the balance sheet in the with the GSTR 9, so please prepare a reconciliation statement for all the 19 states. Please prepare a single file. In that particular single file, report turnover as per GST and reconcile this turnover with the turnover as reported in your books of accounts, as reported in the financial Sir, statement. small doubt, sir. In the remarks, we have to total turnover this much. Each turnover, each state wise, we have to report in the remarks state also, or we have to leave like that. No, sir. There is no need to give any remarks in the remarks column. It is my suggestion. Please prepare a reconciliation statement, 1-page reconciliation statement, and this reconciliation statement should be attached when you file GSTR 9C in each particular registration. Thank you very much, sir. Thank you for the clarifying. Hello, sir. Sir, one second, sir. Yes. Hello. So that's what, sir. All other ITC is coming in table 4A, no? For example, 1 Table lakh rupees 6A. GST. 4A and 6A. Yes. 6A. Around or 1 lakh rupees is there. But if we have claimed only 80,000 rupees, 20,000 rupees, where we have to report? Your client has only claimed 80,000 rupees. Correct. Sir, if your client has claimed only 80,000 rupees, then this 80,000 will be the part of table 4A5, sir. 4A. 4A5. No, 6A. I'm talking about 6A. Sir, please listen me carefully. Your question is that the total amount of ITC is 1 lakh rupees, but your client has claimed 80,000 rupees. Correct. Okay. Then first, this 80,000 will be part of GSTR 3B table 4A5. 4A5. 1 second. Correct, 4A5. sir. 4A5.
4A5. Because you have claimed 80,000 in GSTR 3B, so in table 4A5 there will be amount of rupees 80,000 only. Correct, sir? No. See what happened? No, in 4-5 for table GST 3B 4-5 mentioned 1 lakh rupees. Okay. Okay, We you have have reversed mentioned in 1 lakh. It means 1 you lakh have. rupees. Yeah, It 1 means lakh you. rupees. Sir, And sir. 4B2 is then it is reversed. Okay, no issue, sir. IT is reversed. We have mentioned there. Okay. We have mentioned 20,000 difference. Okay, Balance sir. will come 80,000 rupees. Net IT will be 80,000 rupees. We have claimed 80,000 only. Okay. I'm repeating your query. Yeah. In table 4A5, you have reported 1 lakh rupees. Correct. In table 4B2, you have reported 20,000 rupees. Correct. So in GSTR 3B, in input tax credit, your amount is appearing 80,000 rupees. But Correct. in In 3B, GSTR 9, yeah. but in GSTR 9, in table Yes. 6A, rupees 1 lakh will be auto-populated. Correct. Then where The is the balance, question? correct. No, balance 20,000 rupees. Where do I have to show in 3B and GST 9? In table number 7. In table number 7. Yes, sir. Okay, got it. In table number 7 only we need to reverse. And Yes, here, sir. one second. And this table numbers 6, J, 6A. 6J, Sir, we sir, put sir, sir, different amount. please. No, Sir, no sir. need. Sir, sir. Yeah. Please, yeah. 1 lakh rupees will be auto-populated in 6A. Correct. Then you will bifurcate this 1 lakh rupees, suppose in 6B. table number 6B. B, correct. Okay. Then reversal Difference part 6J, will be 6J reported. difference will come. No, 6J difference will come. sir, no difference will come. Why difference Why? is come? Because in 6A there is a rupees 1 lakh. In 6B Correct. there is a rupees 1 lakh. Why there is No, a difference no, of no, no, 6? no. 20, no. See, 6A is 1 lakh rupees will come. 6A, 6B only 80,000 rupees. No. No, We sir. have, It will be 1 lakh rupees, sir, because why? reversal will be reported in table number 7. Because reversal will be reported in table number 7 and table number 7J will have the amount of ITC 80,000 only. And it will be part of 12E of GSTR 9C. And in table number 12A of GSTR 9C, it will be rupees 80,000. So both amount will be based. In table number 6B, you will not report 80,000. You will report 1 lakh. Please check it. Mr. Mahesh, Then please where check we it. have to reverse that one? Where we have to reverse that one? Table number 7. 20,000. In GSTR 9, table number 7, you will report reversal amount. Sir, this table 7J, what it total takes, sir? So, table 7J. Sir, table 7J, ITC available for utilization for the particular financial year. This is table number 7J. If you have the form GSTR 9, you can check it. Fine, sir. Yes. Sir, Yes. may I speak, sir? Yes, Ankit. थैंक यू सर. सर अभी जो बात हो रही थी, हमने टेबल 3B में 4A5 में 1 लाख क्लेम किया. हाँ 4B2 20,000 रिवर्सल किया. हाँ 80,000 नेट क्लेम किया. हाँ दिस पार्ट इज क्लियर. उसी साल में नेक्स्ट मंथ में जो सेम ईयर बिलोंग करता था, उसमें वापस उस 20,000 को हमने फिर A5 से क्लेम किया और D1 में डाल दिया. ठीक है. ओके. अब इसका इम्पैक्ट GST 9 में पहले 6A में 1 लाख आया, 7 में 20,000 माइनस हुआ, तो वापस जो 20,000 है वो 6H में डालना है ना मेरे को. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर, बिकॉज दिस ITC वाज फर्स्ट टाइम क्लेम्ड इन 24-25, रिवर्स इन 24-25, Right. then reclaim in Yes, 24-25. sir. So reclaim Yes, sir. will be part of table 6H. थैंक यू सर, वही कंफर्म कर. थैंक यू सर. And Mr. Lokesh, already 8:20 हो चुका है. लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं. Hello. Yes, sir. I Yes. was Hello. about to say Hello, sir. Yes, Mr. Dunia. too many questions. Mr. Suhil. Hello. हाँ हाँ Mr. Sir, Suhil. सर वॉइस आ रही है? आ रही है बढ़िया सर. है. बढ़िया. हाँ सर जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मेरी फर्म को रूल 42 और 43 दोनों एप्लीकेबल है. हाँ ओके. तो अब मैंने कोई फाइनेंशियल 24-25 की ITC 25-26 में क्लेम किया, तो ITC Mr. Lokesh, please mute उसका CMI. रिवर्सल कहीं मुझे एक दिखाना मिनट. Just give me 1 minute. आप वापस अनम्यूट कर लीजिए सब लोग. हाँ, क्या हो रहा है कि बाकी वो आ रहे हैं. एक बार आप लोग वापस अनम्यूट कर लीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे थे राजेश सर. जी. यस प्लीज आस्क सुनील जी.
हाँ जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी फर्म को रूल 42 और 43 अरे यार, दोनों एक एप्लीकेबल है। एक मिनट रुकिए। आई डोंट नो ये कहाँ से आवाज आ रहा है यार। पता नहीं सर। एक सेकंड, एक काम करते हैं, मैंने 1 मिनट रुकी। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। राजेश, राजेश सर अनम्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन शायद सुनील जी पूछ रहे थे, सिर्फ सुनील जी को अनम्यूट कर देते हैं। सुनील जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। राजेश सर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, अब किसी का आवाज नहीं आएगा। हाँ जी सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फूड इंडस्ट्री है तो उसमें रूल 42 भी मुझे एप्लीकेबल है और 43 भी है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीसी 25-26 में क्लेम करता हूँ, तो हम्म। मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग में डाल देता हूँ कि मैंने नेक्स्ट ईयर ये आईटीसी क्लेम की हुई है। कहाँ डालते हैं बट आप? इसमें जहाँ पे आपने वो बोला था ना टेबल में कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जहाँ पे शो करते हो वहाँ पे डालूंगा, पर जो 42 का मैं रिवर्सल करूंगा वो हम्म। मुझे कहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा? आपने 24-25 का नेक्स्ट ईयर रिवर्सल किया है हाँ, कि तो जिस मंथ में मैंने क्लेम किया है उसी मंथ में मैंने जो प्रपोर्शनेट था उसमें रिवर्स किया हुआ है। कोई बात नहीं। आपका 24-25 का आईटीसी है, आपने हाँ। 25-26 में रिवर्सल किया है, आपको रिपोर्ट 24-25 में ही करना था, तो टेबल नंबर 12 का पार्ट बना देना उसको। ओके। हाँ जी। और एक लास्ट क्वेश्चन मयंक आपका। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। मयंक, सीए मयंक जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाय सर, वेरी वेरी नाइस सेशन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, बहुत अच्छा सेशन था सर आपका। जैसे कि है ना सर, आपका कोलैबोरेशन अभी टैली सॉल्यूशन से अभी इस सेशन का, तो मेरा एक क्वेश्चन है सर टैली पे, जीएसटी 9 पे, है ना। आप कहो तो मैं क्वेश्चन करूं सर, टैली पे ही है। टैली पे है तो अगर मैं कर सका तो ठीक है, नहीं तो लोकेश जी आपको आंसर करेंगे। यस। जरूर तो कोशिश टैली पे करेंगे सर। टैली पे सर ये क्वेश्चन ये है, जैसे अपन अ- अभी का सिनेरियो है टैली 7.0 में, अपन सारी जो डिटेल्स हैं GSTR 1 वगैरह ऑटो डाउनलोड करके टैली से, जैसे कंपू जीएसटी में अपन डाउनलोड करते हैं ना, टैली डाउनलोड करके टैली से ऑटो मैच कर सकते हैं विद इन द सेकंड सर, है ना। सेकंड में हाँ मैच कर सकते हैं, हाँ। है ना। हम्म। तो बाद में सर अपन जैसे ही 3B डाउनलोड करते हैं ना, 3B डाउनलोड करने के बाद में वो सर मैचिंग का ऑप्शन दिखाता नहीं है 3B के अंदर। रिकॉन्सिलेशन में रिकॉन्सिलेशन का तो ऑप्शन है ही नहीं, रिकॉन्सिलेशन 3B। पर उसमें मैंने आज देखा सर, उसमें रिकॉन्सिलेशन 3B का ऑप्शन दिखा नहीं रहा। थोड़ा सा आप इस पे ठीक है। बताइए ना। ये अगर मान ऐसे लो, लोकेश मान जी एक मेरा मिनट, लोकेश जी, क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं सर। लोकेश मान जी लीजिए अपन को ठीक अभी है, एक ठीक है। एक मिनट दिखा है मयंक ना, जी, मयंक जी मैचिंग एक करनी, हाँ मिनट, जी। मयंक जी ऐसा है, आप ना लोकेश जी आप अपना इनको मोबाइल नंबर दे दीजिए, हाँ आपको राइट। कॉल कर लेंगे, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। हाँ राइट राइट, ठीक है अच्छा, मयंक जी। ज्योति ज्योति का एक क्वेश्चन और है, ये चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक यस सेकंड, जो ज्योति, वन क्वेश्चन सर। 1 मिनट रुकिए मयंक जी, ये आप मुझे मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज्योति जी को अनम्यूट कर देता हूँ। 1 मिनट, एक हाँ मिनट। जी, क्योंकि मुझे भी ना हाँ सर, खत्म नहीं करना है। राइस, बहुत टाइम हो गया सर, मैं बोलने वाला ही था। हाँ ज्योति जी। जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो सर। हाँ यस। बोलिए, लास्ट क्वेश्चन। सर वेरी नाइस सेशन। सर थैंक मेरा यू। क्वेश्चन वाज लाइक, अगर 3B में if I have utilized, if I have more ITC in my books and I have utilized in 3B less, and there is a difference between that ITC, so what I have to do? I have to pay off or I have to show reverse in this 24-25? आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले मैं आपका क्वेश्चन समझ लेता हूं। आपने कहा हम्म, 24-25 में आपने आईटीसी में ज्यादा क्लेम ले लिया है, बट हाँ, आउट ऑफ दिस एक्सेस क्लेमिंग ऑफ दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू हैव यूटिलाइज शॉर्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट नाउ exactly. you want to reverse this excess claim amount of input tax credit. Yes. So you should reverse it, and you can use input tax credit, whatever lying in your credit ledger account, you can use this amount for the payment of excess availment of input tax credit. और आपको एक बात Okay. और बता दूं, अगर आपके पास में कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना आपने एक्सेस क्लेम किया है उससे कम रहा, सो यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। Okay. At the rate of 18%. यस। Okay. Okay. Thank you, sir. ओके लोकेश जी।
आप म्यूट है लोकेश जी। एक क्वेश्चन चैट में सर एक बार बार आ रहा है, एक लास्ट लेंगे या छोड़ दें, आप बताइए। ले लेते हैं सर। सर, इज दिस टेबल 12B of GSTR 9C redundant for 24-25? देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली एफएक्यू में भी है जो आपने पूछा है। टेबल बी वैसे देखा जाए तो हो गई है एक तरह से, क्योंकि जो लास्ट ईयर का आईटीसी था वो हमसे बाहर करवा दिया गया है 6A1 से। सो देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट टेबल 12B ऑफ जीएसटीआर 9C रिडंडेंट नाउ। बट अगर आपको फिर भी लगता है कोई एडजस्टमेंट है, यू कैन अटैच ए रिकंसिलेशन इन विद रेस्पेक्ट टू द टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 9C। और अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं इसमें कोई अमाउंट होगा जो रिपोर्ट करने लायक होगा। आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल नॉट शो इन 8A, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है सर। इज देयर चेंज इन जीएसटीआर 99C ड्यू डेट फाइलिंग एक्सटेंडेड? नो, देयर इज नो चेंज रिगार्डिंग द एक्सटेंशन। ठीक लास्ट है, डेट इज 31 दिसंबर 2025। ओके। ठीक है। तो सर वो वर्ड्स तो मैं क्या बोलूं सर, कुछ बाकी नहीं है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं अभी भी 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, 225 230 तक हमारे पार्टिसिपेंट्स गए थे। क्या एनर्जी सर, एकदम आपको एक 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 टेबल का अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप लेवल तक सर है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है सर, कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही थैंक यू जी। थैंकफुल सेशन है, मतलब बहुत सबके तरफ से थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ओके, आई एम लीविंग नाउ सर। एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग लास्ट अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, एनीथिंग? जिस यस वीडियो में, अंकित। एक मिनट में सबको एक बार अनम्यूट अलाउ योरसेल्फ कर देता हूं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को अगर कुछ बोलना है अदर देन क्वेश्चन, क्वेश्चन सर ने बहुत ले मजा आ लिए। गया सर। यस, एनीवन एल्स? सर क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपने इमेज दे दी। जीएसटी 9 से पहले काफी हेल्पफुल रही है ये इमेज। ठीक है, ठीक है, चलिए Enjoyed वाइंड a अप lot. करते हैं। ओके, Enjoyed a रिकॉर्डिंग्स lot. आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। मैंने चैनल का लिंक वगैरह सब दे दिया था, और एक बार मैंने चैट में दे दिया। सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बहुत सारे हैं, वो लिंक भी मैं नाइस ग्रुप में भी भेज दूंगा। सर। ठीक है, बाकी थोड़ा फीडबैक ग्रुप में भी दीजिए ताकि बाकी लोग भी समझे, ज्वाइन करें। लाइव क्लास का मतलब ही अलग होता है। चलिए, ठीक है सर, वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत मतलब बहुत शांति हो गया सर, सर बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है सर, आप अनम्यूट Yes, करना sir. पड़ेगा एक बार। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।